फ्रेंड्स, हमने जो स्कैटर डायग्राम के बारे में अगले वीडियो में पढ़ा था उसका हम अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कितने टाइप के स्कैटर डायग्राम थे? देर आर 5 टाइप्स ऑफ स्कैटर डायग्राम। लेट अस अंडरस्टैंड फास्टली। मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, आप मुझे बताइए कि ये किस टाइप का डायग्राम है। दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस and the points of scatter diagram is like this. किस टाइप का डायग्राम है ये? यस, ये डायग्राम, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहां पर आप देखते हैं ऑल द पॉइंट्स ऑफ स्कैटर डायग्राम लाई ऑन वन सिंगल लाइन, राइट? एंड इट इज upward direction from left to right. So we can say that this is a perfect positive correlation. This is a perfect positive correlation. Now I draw another diagram. Please tell me which type of this diagram is. X axis, y axis and 0. The points of scatter diagram is as is. ऐसे पॉइंट्स हैं स्कैटर डायग्राम के। ये किस टाइप का स्कैटर डायग्राम है? यस, राइट, दिस इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। क्यों ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है? क्योंकि यहाँ पर डायग्राम के हर एक पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो पॉइंट्स हैं वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो डायग्राम है ये परफेक्ट नेगेटिव डायग्राम है, राइट? ओके, now I draw another diagram. X axis, y axis and 0. This type of diagram. Can we say that this is a perfect, any type of perfect diagram? No. यदि जो कोई परफेक्ट पॉजिटिव होता है कोरिलेशन या परफेक्ट नेगेटिव होता है, एक पॉइंट फिक्स है कि हर एक स्कैटर डायग्राम के पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए। इधर भी स्ट्रेट लाइन में है, इधर भी स्ट्रेट लाइन में है। अब हमको सोचना है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इफ द पॉइंट्स आर in upward direction, then this is a positive correlation, and the points are downward relation, then this is a negative correlation. Here you can see that the points are in upward direction, right? Thus this scatter diagram shows positive correlation. But second point, is it perfect correlation? No, this is not perfect correlation. Because for perfect correlation, the points of scatter diagram should be in straight line. The points are not in straight line. So we cannot say this diagram is perfect positive correlation. So this diagram is called partial positive correlation. This diagram we can say that partial positive correlation. In the same way, I draw another diagram. X axis, y axis and 0. The points are like this, right? Here the points are
in downward direction from left to right, from left to right. So we can say that this is a negative correlation. But is it perfect correlation? No. For perfect correlation, points of variable x and y on scatter diagram should be in a line, right? So we cannot say that this diagram is perfect negative correlation. This diagram is partial negative correlation. पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन. और पांचवा डायग्राम था. पांचवा डायग्राम कौन सा था? सच लाइक दिस. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड पॉइंट्स ऑफ एक्स एक्सिस, points of x and y are like this. Here you can see that points of scatter diagram lie randomly without forming any specific pattern. So we can say that this diagram shows, yes, please let me help, absence of linear correlation or lack of linear correlation. Lack of linear correlation. Lack of linear correlation. ये सब हम डायग्राम पढ़ चुके हैं. ये हर एक डायग्राम आपको याद होना चाहिए, उसका कंसेप्ट याद होना चाहिए. कोई भी चीज़ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है. एग्ज़ाम में कोई ऐसा एक डायग्राम भी देते हैं और हमको ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं, तो आपको याद होना चाहिए. हम फिर से क्विक रिवीजन करते हैं. मैं आपको क्विक क्वेश्चंस पूछता हूँ, आप मुझे आंसर दीजिए. यदि जो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है तो दो पॉइंट आपको याद रखने हैं. एक पॉइंट, द पॉइंट शुड बी इन लाइन, एंड सेकेंड पॉइंट, द पॉइंट्स आर फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन टू डाउनवर्ड डायरेक्शन. The points are from upward direction to downward direction. And if it is not in perfect negative correlation, then the points are not on a line. It is nearer to line, right? Then we can say that this is a negative correlation. But another condition is also that the points should be from left to right and in downward direction, right? In the same way, for the perfect positive correlation, the point should be in line and the line is going in upward direction from left to right. Now for partial positive correlation, the points are not on line. The points are not on line, but the points are in upward direction from left to right, right? And in case of lack of linear correlation, the points are randomly plotted on a graph. There is no specific pattern like this, or like this, or like this. So we can say that this is a lack of linear correlation. ये हर एक पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अब हम ग्राफ की स्टडी करेंगे. ये पॉइंट्स के आधार पे हम अब एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे. अब हम स्कैटर डायग्राम को बेस लेके हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 एग्जाम्पल नंबर 1. हम ये एग्जाम्पल रीड करते हैं. देखो, अ बॉल पेन मेकिंग कंपनी वांट्स टू नो द रिलेशन बिटवीन द प्राइस इन रुपीज and supply in 1000 rupees of its most selling gel pen. Here we have two variables. One is price in rupees and supply in 1000 units. हमको supply in 1000 units में दिया हुआ है. Of its most selling gel pen, the following information is collected for it. जो सेल आउट होता है उसके बेसिस पर हमको इंफॉर्मेशन दी गई है. एंड
ड्रॉ अ स्कैटर डायग्राम, हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, ड्रॉ अ स्कैटर डायग्राम एंड इंटरप्रेट इट। हम स्कैटर डायग्राम जो ड्रॉ करेंगे उसके जो पॉइंट्स आएंगे उसके बेसिस पर हम स्कैटर डायग्राम के जो वेरिएबल है, वेरिएबल प्राइस एंड सप्लाई ऑफ यूनिट्स, दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन है उसका हम इंटरप्रेट करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन हमको पूछे हैं। ज़्यादातर बच्चे एग्जाम्पल्स पढ़ते नहीं हैं और उसकी वजह से कभी कभी वो गलत एग्जाम्पल सॉल्व करके आते हैं। यहाँ पर हमको स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करने का पूछा है और इंटरप्रिटेशन करने का पूछा है। ज़्यादातर बच्चे सिर्फ स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करके आते हैं, इंटरप्रिटेशन नहीं लिखते हैं, तो उनके मार्क कट हो जाते हैं। इस टाइप के एग्जाम्पल हमको 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, राइट। अब अपन एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। हमको यहाँ पर 2 वेरिएबल दिए हैं, एक प्राइस इन रुपीस एंड सेकेंड वेरिएबल इज मंथली सप्लाई। मंथली सप्लाई in 1000 units, 1000 यूनिट्स। अब हम ये एग्जाम्पल को समझते हैं। ये शुरुआत के एग्जाम्पल है, हम एकदम डिटेल में समझेंगे और उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्राइस हम पहले लिख देते हैं 14, 16, 12, 11, 15, 13 and 17, right? And monthly supply in 1000 units are 32, corresponding to variable price 32, 50, 20, 12, 45, 30 and 53। यहाँ पर आप देखेंगे हमको ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ में हमें सबसे पहले लोएस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है, ताकि हम ग्राफ के जो पॉइंट्स हैं और ग्राफ का जो स्केल है वो हम सही तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे लोएस्ट वैल्यू इन प्राइस, वेरिएबल प्राइस, प्राइस का जो वेरिएबल है उसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू हम देखते हैं तो 11 आता है, सबसे लोएस्ट वैल्यू 11 आता है एंड सबसे हाईएस्ट वैल्यू 17 आता है, राइट। ये प्राइस का जो वेरिएबल है उसको हम x कंसीडर करेंगे एंड जब मंथली सप्लाई इन यूनिट्स है उसको हम y कंसीडर करेंगे, राइट। अब वेरिएबल y में अपन देखते हैं तो सबसे लोएस्ट यूनिट है 12 एंड सबसे हाईएस्ट यूनिट है ये 50 हुआ और ये 53 है। अब हम यहाँ पर उसका स्केल डिसाइड करना है। मैं यहाँ पर रैंडमली अपन देखते हैं। मैं आपको एकदम बेसिक से सिखाऊंगा, ये फर्स्ट टाइम है, ये पहला सम मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा। आप ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हाँ आप अगले स्टैंडर्ड में भी सीख चुके हैं, फिर भी सपोज मान लो किसी का कंसेप्ट क्लियर ना हो तो मैं एकदम बेसिक से आपको सिखाता हूँ। ये हम एक्स एक्सिस पर लेंगे, मतलब यहाँ पर हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर हम वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर सेंटीमीटर के जो पॉइंट्स हैं वो कम हैं और वाई एक्सिस पर सेंटीमीटर के पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा हैं। हम यहाँ पर स्केल मार्क डिसाइड करेंगे। अब ये जो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर हम 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे हम लिखेंगे तो आराम से पॉइंट्स कवर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम वाई एक्सिस पर यदि जो हम ऐसे लिखेंगे 20, 50, 40, 50, तो ये जो ग्राफ है वो बहुत छोटा बनेगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50, तो
तो ग्राफ बहुत छोटा बनेगा। यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर के अंदर ही हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यदि हम 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 यूनिट्स कंसीडर करेंगे। देखो ये 1000 में है, आप ध्यान रखना, ये 32,000 है, ये 32 यूनिट नहीं है, ये 32,000 है। तो अपन यदि जो स्केल मेज़र करते हैं तो उसमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5000 लिखना है, 5000 यूनिट्स। तो ये जो 1 सेंटीमीटर हुआ वो 5000 हुआ। यहाँ पर हम 5 लिखेंगे क्योंकि ये जो स्केल माप है इन 1000 होगा। तो हम 5, 10, 15, फिर 20, फिर 25, तो हमारा ग्राफ थोड़ा बड़ा होगा। तो उससे हमारे जो पॉइंट्स हैं वो सही तरीके से आएंगे। सेम ऐसे ही हम यहाँ पर हम 11 से स्टार्ट करते हैं, मतलब 11, 12, 13, 14, ये फर्स्ट सेंटीमीटर इज इक्वल टू 11, लेकिन उसके आगे के पॉइंट्स हम लिखते नहीं हैं। यदि हम ऐसा होता है तो हमें यहाँ पर एक जिगजैग लाइन करनी है, एस टाइप का। तो इसका मतलब ये है कि आगे के पॉइंट्स इसके बीच में आ जाते हैं, राइट। तो हम यहाँ से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे हम स्टार्ट करेंगे। चलो अब हम यहाँ पर स्केल माप पर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्केल माप हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब हमारा स्केल माप क्या हुआ, 1 सेंटी ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, on x axis 1 centimeter is equal, this is in rupees, 1 centimeter is equal to 1 rupees, right? And on y axis 1 centimeter is equal to 5000 units, right? पहले हम स्केल यहाँ पर लिखते थे एकदम साइड पे, कॉर्नर पे। स्केल एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर is equal to 1 rupee, and on y axis 1 centimeter is equal to 5000 units, राइट। हमने यहाँ पर स्केल लिख दिया, उसके बाद हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। देखते हैं, मैं एकदम बेसिक से आपको सिखाता हूँ ताकि अब 12th में आपके पूरा 100 में से 100 मार्क्स आने चाहिए। मैं आपको एकदम बेसिक से, यहाँ से हम 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर जितनी जगह हम छोड़ देंगे, यहाँ से हम, और यहाँ से एक भी 2 सेंटीमीटर जितनी जगह छोड़ देंगे, और उसके बाद में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैंने पॉइंट रखा, इधर मैंने यहाँ पर पॉइंट रखा, फिर से चेक किया, और अब मैं एकदम स्ट्रेट लाइन खींच देता हूँ ताकि वो एग्जैक्ट लाइन पर ही आनी चाहिए। ये लाइन मैं थोड़ी बड़ी करता हूँ, ये लाइन आड़ी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी इन स्ट्रेट लाइन, नहीं तो हमारा जो मेज़रमेंट है वो सही नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने एरो किया, यहाँ पर मैंने एरो किया, ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया। अब हर बार मैं ऐसे आपको नहीं सिखाऊंगा, ये फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं आपको ऐसे सिखा रहा हूँ, आप समझ लीजिए। मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा किया, यहाँ पर पॉइंट किया, ये मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए पॉइंट कर रहा हूँ ताकि अपन समझ सके कि लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। ये लाइन दूसरे स्केल में नहीं जानी चाहिए या दूसरे ब्लॉक्स में नहीं जानी चाहिए। मैं ये लाइन को और बड़ी कर देता हूँ, फिर से मैं पॉइंट रखता हूँ। देखो मैं ऐसे ही ड्रॉ कर देता तो ये लाइन आगे चली जाती, लेकिन मैंने यहाँ से फिर से एक पॉइंट रखा, फिर से यहाँ पर पॉइंट रखा, मैंने चेक किया,
कि लाइन स्ट्रेट आएगी कि नहीं आएगी, उस हिसाब से मैं लाइन को ड्रॉ करता हूँ। अब हमें एक्स एक्सिस, हमें यूनिट्स भी लिखने हैं। ये एक्स एक्सिस हुआ, एक्स लिख दिया, इधर मैंने वाई लिख दिया। अब हमें यहाँ पर लिखना है, ये वाई का दूसरा एरो कर दिया। हमें यहाँ पर लिखना है ये प्राइस, एक्स एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, प्राइस इन रुपीस। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 रुपीस प्राइस। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्राइस इन रुपीस। अब वाई एक्सिस पर क्या है, मंथली सप्लाई। अपन सिर्फ मंथली सप्लाई रखेंगे तो ये सही नहीं होगा, हमको ये भी लिखना पड़ेगा 1000 यूनिट्स, हमको ये भी लिखना पड़ेगा 1000 यूनिट्स। मैं ये भी लिख देता हूँ 1000 यूनिट्स। अब यहाँ पर हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 11 से स्टार्ट करेंगे। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 लाइक दैट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है यहाँ से यहाँ तक का 11 थोड़ा आता है, हमने स्केल माप पढ़े हैं, हम स्केल माप अगले स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। तो ये तो यदि 0 है तो यहाँ पर 1 आना चाहिए, लेकिन हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 11 से स्टार्ट करते हैं। तो यदि जो हम ऐसा स्टार्ट करते हैं तो मैंने यहाँ पर बताया था कि ऐसे जिगजैग लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से आगे 1 to 11 कंप्लीट हो गए हैं, राइट। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्स एक्सिस पर 11, ये 11 हुआ, ये 12, 13, 14, 15, 16, 17, मैक्सिमम नंबर इज 17, फिर भी हम आगे 1-2 नंबर लिख सकते हैं, एंड 18, राइट। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5000 यूनिट्स। मतलब हम 5000 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिर्फ 5 लिखेंगे, राइट। मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, हम 1000 लिख देते हैं, 5000। मैं वर्ड में लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 5000 एक्स एक्सिस पर, यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर 10 आया, ये 10 लिखा। अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 20 आएगा, या तो फिर 5, 10, ये 15, 25, कहाँ तक जाना है हमको, 55 तक जाना है क्योंकि 53 है। 25, 30, 35, 40, एक बार चेक कर लेते हैं, कभी कभी गलती भी हो जाती है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड 55। अब हम दूसरा कंसेप्ट समझते हैं। यहाँ पर तो हमने लिख दिया 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज मान लो ये एक्स एक्सिस पर प्राइस इज इक्वल टू 14, देन वाई एक्सिस पर 32। यहाँ पर हमें 32 एग्जैक्ट नहीं मिलते हैं, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पर अच्छी तरह से पॉइंट रखना पड़ेगा। अब मुझे बताइए कि मैं यहाँ से ये जो 14 का है, मैं यहाँ से 32 लेना है, तो ये 30 और उसके ऊपर 2 पॉइंट लूँगा? नहीं, क्योंकि हमें 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का ये जो 10 जो बॉक्स है, 10 बॉक्स है वाई एक्सिस पर इज इक्वल टू 5000 यूनिट्स। मतलब 0 है, ये 0 से
10 तक में कितने बॉक्स आते हैं? 20 बॉक्स आते हैं। मतलब 2 बॉक्स इज इक्वल टू 1000 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ? 2 बॉक्स इज इक्वल टू 1000 यूनिट, राइट? फिर से मैं रिपीट करता हूं, 1000 यूनिट के लिए कितने बॉक्स चाहिए? क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है, सॉरी ये 5000 यूनिट है और ये 10,000 यूनिट है। मतलब 2 बॉक्स आएंगे तो 1000 यूनिट होगा, फिर से 2 बॉक्स होंगे तो 2000, फिर से 2 बॉक्स होंगे 3000, ऐसे 10 बॉक्स होंगे तो 5000 यूनिट्स आएंगे, राइट? मतलब 1 बॉक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, सपोज मान लो आपको समझ में नहीं आया हो। हमारे जो ग्राफ पेपर है इसमें ऐसे बॉक्स दिए हुए, ये लाइन है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6, 7, 8, 9 एंड 10। यहाँ पर हमने 5 लिखा है, राइट? इधर हमने 5 लिखा है। अब तो ये 1 लाइन इज इक्वल टू कितना हुआ? 1 लाइन इज इक्वल टू 1000 यूनिट हुए क्या? नहीं हुए। 2 लाइन इज इक्वल टू 1000 यूनिट हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे यदि जो 1000 यूनिट्स लिखने हैं, 1000 यूनिट को इधर मुझे स्केल मार्क से पॉइंट करना है, तो 1000 यूनिट्स इज इक्वल टू कितना लाइन मुझे जाना है? 2 लाइन जाना है। तो हमें यहाँ पर 32 यूनिट्स हैं। तो हमें कैसे करना है? इफ़ द प्राइस इज इक्वल टू 14 देन द मंथली सप्लाई इज इक्वल टू 32। ये 30 आया और उसके ऊपर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, मतलब 4 पॉइंट के आगे हमें पॉइंट ड्रॉ करना है। ये आ गया, राइट? सेम ऐसे ही ये 16 है तो ये 15 है। एग्जैक्टली हमारे पास 50 है, 16 पे ये 50 है तो हमें कोई आगे पीछे देखना नहीं है। ये 12 है तो 20। इफ द प्राइस इज 12 देन द मंथली सप्लाई इज इक्वल टू 20,000 यूनिट्स। ये 12 है तो ये 20,000 यूनिट, इधर कोई हमको देखना नहीं है, एग्जैक्ट है 20,000 यूनिट्स। ये 11 है तो 12,000, ये 11 है तो 12। अब हमें देखना पड़ेगा ये 10 हुआ, उसके ऊपर कितनी लाइन हमें आगे जाना है, कितने बॉक्स आगे जाना है, क्योंकि हमने देखा था, ये देखो 1000 इज इक्वल टू 2 बॉक्स और 2 लाइन, राइट? तो हम क्या करेंगे, ये 11 के ऊपर 10 हुआ और उसके ऊपर 4 पॉइंट, मतलब ये जो आता है वो 5 का आता है, उसके बाद का एक हम ये आ गया, राइट? अब 15 तो 45, इसका भी है हमारे पास 15 तो 45 का भी पॉइंट है हमारे पास, ये रहा। एंड 13 तो 30, इफ x इज इक्वल टू 13, y इज इक्वल टू 30 का भी है हमारे पास। इफ x इज इक्वल टू 17, y इज इक्वल टू 53। अब हमें सोचना है, ये 50 है, अब 17 प्राइस x इज इक्वल टू 17 देन y इज इक्वल टू 53। तो हम कैसे करेंगे, ये 50 है, 50 के ऊपर 2 पॉइंट 51, उसके ऊपर 2 पॉइंट 52 और उसके आगे 2 पॉइंट 53, ये 53 हुआ। राइट? ऐसे हमारा ग्राफ कंप्लीट होता है। अब ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करने का। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था, फिर से देखिए क्वेश्चन में, ड्रॉ अ स्कैटर डायग्राम एंड दूसरा हमको क्या बताया था, एंड इंटरप्रेट इट, राइट? हमारा क्वेश्चन क्या था, ड्रॉ अ स्कैटर डायग्राम। हमने स्कैटर डायग्राम कंप्लीट कर दिया, मतलब एक आंसर हमने दे दिया। अब हमें दूसरा आंसर देना है। क्या आंसर है, एंड इंटरप्रेट इट। इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, हमें क्या दिखता है ये स्कैटर डायग्राम से, हमें दिखता है, हमें लगता है
कि ऑल द पॉइंट्स आर नॉट इन स्ट्रेट डिरेक्शन. वन पॉइंट मीन्स इट इज नॉट परफेक्ट एनी. ये कोई परफेक्ट कोरिलेशन नहीं है. या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है. परफेक्ट पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है. ये कोई स्ट्रेट लाइन में नहीं है. वन पॉइंट. दूसरा पॉइंट, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं वो लेफ्ट टू राइट इन अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसा रिलेशन है? ये कैसा कोरिलेशन है? ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, लेकिन परफेक्ट है. यदि परफेक्ट होता तो क्या होता? ये स्ट्रेट लाइन में होता. ये परफेक्ट कोरिलेशन नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पार्शियल कोरिलेशन. व्हाट आर द टू पॉइंट्स शुड बी रिटन? वन पॉइंट. द पॉइंट्स आर नॉट ऑन लाइन. फर्स्ट पॉइंट. एंड द पॉइंट्स ऑफ स्कैटर डायग्राम are from downward to upward, from left to right. So this scatter diagram is partially positive correlation. मतलब this scatter diagram shows that variable x and variable y have positive पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन. में ये आप ग्राफ के पीछे भी लिख सकते हो. इसका जो रिलेशन है वो आप ग्राफ के पीछे लिख सकते हो. हम यहां पर क्या लिखेंगे? इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन. फर्स्ट, the scatter diagram do not lie on same line. The scatter diagram do not lie on the same line. First point. Second point, the price and monthly supply. यहाँ पर हम डायग्राम में क्या दिखते हैं? The price and monthly supply in 1000 units. Supply in 1000 units. Price and monthly supply in 1000 units are in same direction but not on the same line, and they are from left to right, so that we can say that this is a partial positive correlation. दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे? The changes in price and sale and supply and monthly supply in units are in same direction but not in the same proportion. Are in same direction but not in the same proportion. क्या लिखा हमने? The changes in price and monthly supply in units are not in same direction. Sorry, monthly supply in units are in same direction. देखो ये सब सेम डायरेक्शन में है. एक इंक्रीज होता है तो दूसरा भी वेरिएबल इंक्रीज होता है. यहाँ से 12 से 12 होता है तो ये यहाँ पर ये जो 11 के साथ जो 12 है
इफ द प्राइस इज 11 एंड द सप्लाई ऑफ यूनिट्स इज 12, अब 11 से 12 की प्राइस होती है तो सप्लाई 12 यूनिट्स से 20 यूनिट्स इंक्रीज होता है। मतलब ये जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल है इज इन सेम डायरेक्शन, एक इंक्रीज होता है दूसरा भी इंक्रीज होता है, राइट, बट दे आर नॉट ऑन exact line. So we can say that there is a partial positive correlation. So we can say that there is a partial positive कोरिलेशन। ये हमको इंटरप्रिटेशन लिखना है। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। थैंक यू।